So good evening everyone. Today's topic is mentorship best for only for law 5 years. Okay. So in this session we will see how to score 120 or how to score maximum in your law CET exam, and we need to boost your score because see at the time you score 70, 80 or maybe more than that. So we need to boost your score up to 120. So how to boost your score we'll see in this lecture. So I will tell you some do's and don'ts. You need to follow these do's and don'ts. And once you have understood this, then we will have some question and answer session and we'll end the lecture. So first of all, we have 20 to 30, or we can say 10 to 20 days left. Okay, so we don't know exact date of MH Law CET. So just we can assume that this is nothing but your what exactly we can say is nothing but your base time. Okay, so we can analyze this. Let's say 20 days. Okay, last 20 days is left. We can take last 20 days. So based on this 20 days, we have made one strategy, or we can say we have made some planning related to this video. Okay, so if 20 days के लिए मैंने plan किया है. Okay, so let's see one by one. So first of all, we will understand what are the different syllabus, okay, or what are the different topics we need to prepare for this exam. First is nothing but logical reasoning, next is mathematics, then English, then general knowledge and legal. So you know better. So logical reasoning is for 40 marks, mathematics is for 10, English is for 30, next is general knowledge is for 30, and legal aptitude which is for 40. So as of now we have almost done the practice, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं. वी हैव डन प्लेंटी, मतलब बहुत सेक्शनल टेस्ट भी दिया होगा. देन वी हैव सॉल्व ऑलमोस्ट thousands of questions related to all topics. So now what exactly you need to do in this time? Okay, so last, or we can say last जो time बचा है, like last 1 month है, last 20 days है, जो भी अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है exactly? See, first thing is nothing but you need to give mock test. So this is nothing but your map strategy. So what exactly map means? Map is nothing but M stand for mock test, A stand for analysis, and P stand for practice. So we need to apply these three things. Okay, this is your three pillars. M stands for mock test, A stand for analysis, and P stand for practice. So right now लास्ट 20 डेज और लास्ट 30 डेज जो भी टाइम बचा है उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को देना है मॉक टेस्ट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कितने टॉपिक्स मेरे अच्छे जा रहे हैं, कितने टॉपिक्स मेरे रॉन्ग जा रहे हैं, क्या किसमें मुझे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट. फ्यू पीपल, बहुत सारे लोग डरते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए. सी जितना ज्यादा डरोगे उतना एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम होगा. सो अभी जो जितना आप ट्राई करोगे इसको टैकल करने के लिए, देन ओनली इट विल वर्क इन योर एग्जामिनेशन. सो राइट नाउ यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट जैसे होता है उसके बाद उसको एनालाइज करो. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 to 10 मॉक टेस्ट दिया है तो एक ही दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दे देते हैं, और नेक्स्ट डे में 2-3 और दे देंगे, उसके बाद 3-4 दिन में मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है. This is not a right, or this is not a right path to do to give a mock test. Mock test कैसे देना चाहिए? First mock test दिया, let's say आज अगर mock test देता हूं, so once you have given the mock test, just see the analysis part. Analysis part में आपको पता चल जाएगा which is your strong point. Let's say if you give mock test, full length mock test दिया and you scored 65, so उसमें पता करो कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स मिले. Let's say if you score 20 in English, okay, so which is nothing but 2/3 of the, or we can say 66% you have scored, because 30 marks के लिए इंग्लिश है, उसमें से आपने 20 स्कोर किया. so which is we can say good score, not a excellent score, लेकिन good score बोल सकते हैं हम लोग. now we need to score 20 लेके 25 एटलीस्ट हम लोग को जंप करना है. okay, एटलीस्ट 25 तक जंप करना है. so how to score, how to boost your 25 up to 25 कब कैसे boost करोगे? So we need to understand which is your strong point and which is your weak point. So मैंने एनालिसिस किया कि मुझे आरसी में out of 10 I got only 2 or 3 marks. So RC is my weak point. Okay, next session was your next topic was your error detection.
सो एरर डिटेक्शन में आपको मिल रहे थे आउट ऑफ 5 यू गॉट ओनली 2 और 3 मार्क्स. सो दिस इज ऑल्सो योर एवरेज वीक पॉइंट. ओके, सो you can say कि 50% you are getting right and 50% you are getting wrong. So we can say, we can name it as a average weak point, or we can say a weak point में उसमें डाल दो. Okay, so now we have two topics which is very weak, which is nothing, first is nothing but RC, or we can say reading comprehension, and the next topic is nothing but error detection. Okay, so these two topics we need to work hard, or we need to work hard in these two topics. So what usually we can do is nothing but ये दो टॉपिक में हम लोग अच्छे से वर्क करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the videos. Okay, so ये 3 steps हम लोग को करने हैं. The first step is nothing but we need to watch a video related to these topics, understand what exactly strategy we need to use, simplify क्या exact हम लोग को उस टाइम पे लॉजिक यूज करना चाहिए, so that we can get the answer within a less than 20 or 30, within a less than 1 minute, and solve some questions related to this. Okay, एक बार वो वीडियोस पता चल गए, उसको स्ट्रेटेजी कैसे करना है उसको, once you understand this part, okay, then मतलब रीडिंग कंप्रेहेंशन का पार्ट आपको क्लियर हो गया, then you can jump to solve questions. Second number step is solve the questions related to this. At least one set solve करो daily. जो आपका weak point है उसका at least one set solve करो. Okay, now the third thing is nothing but give the topic test. First test is clear. First topic, first nothing but you need to watch the video. Second thing is nothing but you need to solve some questions, and third thing is nothing but you need to give a topic test, or we can say sectional test. So once you have given this, आप उसका जो weak point था वो बन जाएगा आपका strong point बन जाएगा. उसको एक टाइम लगेगा, but that time span में, उतने टाइम स्पैन में आपका वो weak point आपका strong हो जाएगा. Okay, now we need to work on this part only. Strong part और strong कितना होगा? Let's say if you are getting in current affairs you are getting let's say in GK part you are getting 30 out of मतलब 25 मिल रहे हैं. So we can improve 2 or 3 marks, maximum 2 or 3 marks जाएंगे, because out of marks निकालना थोड़ा सा difficult है. So we can get out of, but it is difficult to get out of. So 25 से 28 हम लोग जा सकते हैं. So hardly we have 3 marks choice, or we can get 3 marks, maximum 3 marks के लिए जा सकते हैं. Okay, but let's say if you are getting 20 marks in reasoning, so यहाँ पे एक ऐसा चांस है कि 20 से हम लोग जंप कर सकते हैं 35 तक, और 20 से हमारा इंप्रूवमेंट हो सकता है 35 तक. So we need to see which part exactly we need to work on. Okay, so strong point को और strong बना के 1 या 2 मार्क्स बढ़ेंगे, बट वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो ऑलमोस्ट यू विल गेट 10 to 12 मार्क्स, और उससे भी ज्यादा आपका स्कोर बढ़ सकता है. सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैप स्ट्रेटजी, यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट. ओके, और डेली मॉक टेस्ट नहीं देना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट कैसे देना है वो मैं बताऊंगा आपको, बट डेली मॉक टेस्ट नहीं देना है. दिस इज डोंट पार्ट. ओके, डू पार्ट में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, but the most important thing you need to do in your mock test is nothing but analysis part. Once you have done analysis part, you need to find out, analysis part is nothing but strong point and weak points. Okay, or strong topics or weak topics. Once you understand this, work on weak topics. Okay, these are the 3 important steps. First step is watch the video, second step is solve the questions, and then third thing is nothing but topic test. Okay, so next is nothing but planning. Planning कैसे करना है? Okay, see, initially you will be at this stage. Okay, 0 to 60 में आप खेलोगे. Initially first or second mock में आप यहाँ पे रहोगे. So you need to give more and more time to मतलब जितने ज्यादा टाइम दोगे ना उस पे, मतलब मॉक पे नहीं, एनालिसिस पार्ट में, उतना आपका स्कोर बढ़ते जाएगा. ओके, so first thing is nothing but we'll see this slide again. So let's say if you score 60, okay, यहाँ पे जो strong points और weak point आपने लिखे थे, try to cover all this weak point. Okay, पहले weak point strong करने की कोशिश करो. Second जब mock देने जाओगे same mistake नहीं करना है. Okay, so first mock में आप let's say एक topic लेते हैं Silox. So you're weak in Silox. Out of 5 you got only 1 marks.
सो आपको एक समझ में आना चाहिए कि ये सिलॉक्स मेरा टॉपिक वीक है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक। सो 2 days ले लो और उसको कंप्लीटली पूरा अच्छा से बना दो। ओके, नेक्स्ट टाइम जो सेकंड मॉक दोगे उसमें एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर 3 और एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर 4। ओके, कम से कम 3 स्कोर करना चाहिए आपको, 3 मतलब आउट ऑफ 5, सो दैट ओनली यू कैन से कि मेरा ये टॉपिक अच्छे से गया है, और वी कैन से कि ये टॉपिक मेरा इंप्रूव हुआ है। देन ओनली योर स्कोर विल बी फ्रॉम 60 से 70 जा सकता है, और 70 से 80 जा सकता है इन सेकेंड मॉक टेस्ट। ओके, बिकॉज वी नीड टू वर्क फ्रॉम 60 टू टॉपर लिस्ट में आना है। ओके, वी नीड टू गेट 120 प्लस, सो दैट यू कैन गेट ILS और GLC इजिली। हम लोग दोनों में से कोई भी एक कॉलेज ले सकते हैं। ओके, टारगेट 110 और 100 एंड 110 तक रखना ही नहीं है टारगेट। वी नीड टू मेक अ टारगेट लाइक 120 ही जाना है। ओके, 120 एंड यू कैन गेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है, सो वो स्टूडेंट्स ने उन स्टूडेंट का सभी स्टूडेंट्स ने देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मुझे बताया कि 60 स्कोर आ रहा था, 65 स्कोर आ रहा था, आई हैव गिवन सो मेनी थिंग्स। उनको बहुत बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताई है कि ये चीजें इस पे वर्क करो, दूसरे चीजों पे वर्क करो, 3 days का प्लानिंग दिया है उनको। सो उनका स्कोर ऑटोमेटिकली 60 से 70, 70 से 80 ऐसे स्कोर गया है। डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क। ओके, सो राइट नाउ यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट। ओके, उसकी प्लानिंग कैसी है? सी, दिस इज नथिंग बट योर प्लानिंग। फर्स्ट आफ्टर गिविंग फर्स्ट मॉक टेस्ट, गिव 2 days फॉर वर्किंग ऑन टू वर्क ऑन द वीक पार्ट। ओके, वीक एरिया, जो भी आपका वीक एरिया है उस पर आपको वर्क करने के लिए 2 दिन लो एटलीस्ट। 2 days is enough. Okay, and after 2 days you need to give second full length mock test. Okay, and then again do analysis, चेक वही सेम पार्ट अगर मेरा मिस हो रहा है क्या, सेम पार्ट में मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मेरा, वो वीक तो नहीं हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, समटाइम्स व्हाट एग्जैक्टली यू विल सी, फर्स्ट मॉक टेस्ट में यू गिव यूज ऑलमोस्ट सॉल्व 5 पजल्स थे, 5 out of 5 आपने सॉल्व कर लिए, एंड सेकंड मॉक टेस्ट में हो गया उल्टा, हो गया, आपने एक ही पजल सॉल्व कर लिए। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज योर पजल एंड इन सेकंड मॉक टेस्ट वो आपका वीक पॉइंट बन गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो कीप इन माइंड कि जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेम एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी मिस नहीं करना है। ओके, एंड देन फर्स्ट मॉक देने के बाद सेकंड मॉक अगेन 2 days का गैप, जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन सेम थिंग यू नीड टू डू फॉर अप टू 10 मॉक्स। ओके, सेम पेस में, सेम यही मोड में जाना है आपको। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डेफिनेटली। see, steadily right now we are here, steadily we can grow, and up to this, and this is nothing but your set target. So here we can get GLC. So slowly जाएंगे, don't worry, we have time and we can improve. So first is nothing but set your goal, कहां पे आपको जाना है, मेक प्लान अकॉर्डिंगली, बिकॉज क्या होता है आप प्लान करते हो दिन भर में, बहुत कुछ लिख के रखते हो, मुझे आज ये चीज करना है, ये चीज करना है, ज्यादा भी प्लान मत करो। ओके, एक्स्ट्रा थिंग बहुत लिख के रखते हो, आज 10 सेट करूंगा पजल्स के, और होते कितने एट द एंड ऑफ द डे ओनली 2 सेट्स। ऐसे नहीं है, लिख के 3 सेट्स करो, लेकिन 3 एटलीस्ट करो, 3 के 3 कंप्लीट होने ही चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 लिखे और उसमें से 2 ही किया, प्रोडक्टिव होना चाहिए, वर्क शुड बी प्रोडक्टिव। वर्क करो, जो भी आपका स्टिक टू द प्लान, जो भी आपका प्लान सेट किया आपने उसको उस पर स्टिक रहो, रीच योर गोल। ओके, जो भी आपका गोल है उस पर रीच करने के लिए यही काम कर रहेगा, मैप स्ट्रेटेजी, ओनली वर्क ऑन मैप स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बहुत बहुत आपको इफेक्टिव है। सी, ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 60 से चालू किया था, नाउ दे आर एट द 90 और मे बी 90 प्लस उनका स्कोर आ रहा है अभी। यू विल बी पार्ट ऑफ दिस, डोंट वरी, जस्ट सॉल्व मॉक टेस्ट। ओके, और जो सोचते हैं कि लास्ट 10 days में मॉक टेस्ट देना है, विच इज रॉन्ग, लास्ट एटलीस्ट 20 days के पहले मतलब ऐसे देना चाहिए मॉक टेस्ट। सो लास्ट 2 और 3 days में भी कुछ लोग मॉक टेस्ट देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। लास्ट 2 और 3 days में सिर्फ आराम करना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है, दैट्स इट।
नोबडी विल गिव मॉक टेस्ट ऑन लास्ट 2-3 दिन के बीच में, मतलब परसों एग्जाम है और आज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। अंडर प्रेशर नहीं खेलना है, T20 खेलना है हम लोग को। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर टारगेट, एंड टारगेट आपको हमेशा कितना रखना है, 120 प्लस। नाउ if you have any questions related to this session or this, कुछ भी आपको होगा, you can ask me. okay, अभी आप पूछ सकते हो 1 day practice and 1 day mock test, 2 days practice 1 day mock test. okay, प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, देखो लेट्स से टुडे इज मंडे, आज आपने मॉक टेस्ट दिए, सो मॉक टेस्ट दिया, देन एनालिसिस करो। ओके, डू एनालिसिस, ट्यूसडे यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ओके, सो ये दिन में भी वर्क कर सकते हो आप, यू हैव टाइम टू वर्क ऑन द वीक पॉइंट, और वी कैन से वीक एरिया। we can work on Tuesday and Wednesday, and again Thursday we'll give second mock. So almost you get 3 days actually, ये दिन भी आपको काम करने मिलेगा इस पे जो वीक पॉइंट्स है आपको, and then same thing you can give your time to Tuesday and Wednesday, and again Thursday stick to same plan. okay, second mock, ऐसे ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। देन ओनली, अगर आप मॉक टेस्ट से डरोगे तो एग्जाम में भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। ओके सर, व्हाट टू डू फॉर रीजनिंग सेक्शन? जस्ट अ मिनट, सो में बहुत सारे मैसेज है। ओके, आई विल आंसर वन बाय वन। ओके, विच एग्जाम विल हेल्ड फर्स्ट 3 years or 5 years? डिपेंड ऑन द टाइम टेबल, देखेंगे उसी हिसाब से देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट सर, हाउ टू गिव मॉक विदाउट प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस, एनी आइडिया? सी राइट नाउ आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट एक 50-60% भी, और मे बी मोर देन दैट, उससे कंप्लीट हो गया रहेगा। गिव मॉक टेस्ट, जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है गिव मॉक टेस्ट, आपको पता चलेगा, एनालिसिस होगा कि जितना मैंने सिलेबस हुआ है उतना तो एटलीस्ट मेरा क्लियर है क्या। ओके, you will get analysis, that's the important thing. okay, what to do for reasoning section? See, just write down this part for reasoning section. this is what exactly you need to do. जैसे डॉक्टर बताता है ना, सुबह एक गोली लेना है और रात को एक गोली लेना है। ओके, और मे बी दोपहर को भी एक गोली लेते हैं। सो you need to take these 3 tablet. okay, first tablet is nothing but you need to मॉर्निंग में एक पजल, एटलीस्ट 1 पजल, 1 or 2 सेट्स ऑफ पजल। इवनिंग में, और वी कैन से आफ्टरनून में, इवनिंग के पहले आफ्टरनून में, इवनिंग में यहाँ पे होगा। ओके, आफ्टरनून में you need to solve 1 sitting arrangement. okay, puzzle is different, sitting arrangement is different, so you need to solve 1 sitting arrangement, 1 set or 2 set. And in the evening you need to solve traditional reasoning questions. कोई भी एक सेट उठाओ और सॉल्व कर लो। लेट्स से, और इन दिस केस यहाँ पे एटलीस्ट ट्राई करना जो वीक सेक्शंस है आपके, लेट्स से यू आर वीक इन सिलॉक्स। ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस वीक पॉइंट्स। ओके, वीक सेक्शंस, जो भी वीक सेक्शंस है, वीक टॉपिक्स है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक। ओके, दिस इज नथिंग बट योर थर्ड इंपॉर्टेंट। दिस इज मॉर्निंग, दिस इज आफ्टरनून एंड दिस इवनिंग। ये 3 टैबलेट आपको डेली लेने हैं। ओके, डेली, एक भी दिन अभी छोड़ना नहीं है। क्लियर अनुराग? there are people on the syllabus, how can appear full length mock test? सी, जिन्होंने अभी, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट। ओके, आपको एनालिसिस पता चल जाएगा उससे। मॉक टेस्ट के लिए manual.edu
manure.edu.com पे जाना है आपको, और आपको, और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट टीम. ओके. सो स्टैटिक जीके सेक्शन में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है. ओके. स्टैटिक जीके, सी यू विल गेट maximum 10 questions, maximum 10, or we can say, maximum 10 we can say. 8 to 10 you can expect. You can expect 8 to 10 questions from static. So right now क्या करो, हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दो. डेली बेसिस पे एक टॉपिक ले लो और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लो. हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दो. ओके. देन ज्योग्राफी लिया, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर दो. पॉलिटी, पॉलिटी कंप्लीट कर दो. कौन सा बच्चा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लो. दैट्स इट. ये हो गया, दैट्स इट. एंड ट्राई टू कंप्लीट इन विद इन 4 to 5 days. बस इतने दिन में कंप्लीट कर लो. उसको 2 बार रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टू कंप्लीट विद इन 4 to 5 days एंड उसको छोड़ दो. ओके. बिकॉज कितना भी करो, दिस इज अ स्टैटिक पार्ट, इज नथिंग बट योर ओशियन. ओके. कितना भी कंप्लीट करो, थोड़ा ना थोड़ा रह जाएगा. ओके. कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा. सो वी नीड टू वर्क 4 to 5 days ओनली. ज्यादा दिन काम करोगे इस पे तो प्रॉब्लम उसका आ जाएगा करंट अफेयर्स पे, बिकॉज मैक्सिमम डेज वी नीड टू गिव फॉर करंट अफेयर्स. ओके. बिकॉज दिस टॉपिक इज नथिंग फॉर 20 to 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. वी कैन एक्सपेक्ट 20 मार्क्स और मे बी 22 मार्क्स. सो दैट्स वाई ये टॉपिक पे ज्यादा काम करना है, स्टैटिक पे ज्यादा काम करना है, लेकिन 4 to 5 days, दैट्स इट. सफिशिएंट है, उतने सफिशिएंट है. डेली एक एक टॉपिक उठाओ और कंप्लीट कर लो. ओके स्वामी. सो मॉक 1 में मेरा 72 मार्क्स आया. यू कैन जो भी आपका स्कोर है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी. ओके. पर्सनली मुझे एनालिसिस भेजो. आई विल शेयर यू वन, आई विल शेयर यू द एग्जैक्ट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू फॉर लास्ट, जो भी आपका 3 और 5 डेज का, नेक्स्ट 4-5 डेज का आपका प्लानिंग आपको बताऊंगा. ओके. देन यू नीड टू गिव सेकंड मॉक टेस्ट लाइक दिस. 2 दिन के बाद, 2 डेज के बाद सेकंड मॉक टेस्ट लो. उसके बाद वापस एक और आपको प्लानिंग दूंगा. ओके. विदित. सर आई स्कोर्ड 114 in mock I gave recently. Analyzed that I am unable to score English specifically in RC section, so I decided to solve RCs, but still I am unable to attempt RCs very confidently. Sir, can you please help me with the same? Okay. See Darshani, what exactly you need to do? Just a minute, I need to erase this. So if you are not getting out of marks, or if you are thinking कि RC में मुझे out of marks मिलना चाहिए, then you will not get out of marks. Okay. But we can get 8 to 9 marks out of 10. 1 mark छूट जाएगा कहाँ पे तो. Okay. Sometimes you will get 10 out of 10, but maximum time you will get 8 to 9 marks. 1 मार्क कहाँ ना कहाँ तो छूट जाएगा, मे बी इन द सिनोनिम एंटोनिम पार्ट, और मे बी इन द क्वेश्चन. बट एक यूजुअल वी कैन से 90% विल गेट 8 to 9 मार्क्स इजीली वी कैन गेट. सो उसको कैसे करना चाहिए अभी? नाउ जस्ट सॉल्व आपके ये दर्शनी, दिस इज फॉर यू. ओके. मॉर्निंग में एक आरसी सॉल्व करना है आपको. ओके. यू नीड टू सॉल्व 1 आरसी इन द मॉर्निंग. एंड इवनिंग में एक आपको एडिटोरियल पढ़ना है. मॉर्निंग में एडिटोरियल मत पढ़ो, इवनिंग में पढ़ो, और ट्राई टू राइट डाउन दिस एडिटोरियल पार्ट इन एक समरी. इसका लिखने की कोशिश करो, क्या कहना चाहता है वो एक बार लिखो. बिकॉज अंडरस्टैंडिंग जब आपको क्लियर हो जाएगी, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस आरसी. एडिटोरियल क्यों बोल रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ एडिटोरियल एक थोड़ा समझ में आ जाएगा. सॉल्व ओनली रीड एडिटोरियल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल रीड करो. सुबह एक आरसी सॉल्व करना, एक सेट आरसी का, और रात को इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ो. ओके. उससे क्या हो जाएगा आपको, एक बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, एक उसकी एक समरी भी लिखो, क्या एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है. ओके. यू कैन नोट इट डाउन इन योर पीसी, और मे बी यू कैन नोट इट डाउन इन योर बुक ऑल्सो. सो उसको आपको पता चलेगा एग्जैक्टली टोन कैसा है.
वंस यू अंडरस्टैंड दिस टोन, ओके, एक 10 to 15 डेज में आपको इजीली पता चल जाएगा, ओके, और यू विल बी गेट मोर मार्क्स इन आरसी, ओके. Sir, with the help of your guidance, I was able to improve my GK section, but sir, I stuck in English section. Don't worry, Darshani, you will get good marks in English also. 114 is good score. You can get GLC. Don't worry. सर स्टैटिक जीके सेक्शन में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है. ओके, जस्ट अभी मैंने आपको बताया ना कैसे इंप्रूव करना है. सर एग्जाम को कितने डेज है? दिस आर द 22 डेज. डोंट वरी अबाउट दीक्षा, डोंट वरी अबाउट डेज. कोई अभी पूछेगा नहीं एग्जाम कब है. ओके, जस्ट आस्क रिलेटेड डाउट्स. सॉरी सर, आई वाज लेट. कैन यू एबल टू सेंड डेट ऑफ एग्जाम? एग्जाम के बारे में कुछ कोई बात नहीं करेगा. हाई वेटेज कौन सा टॉपिक है स्टैटिक में? स्टैटिक इन द सेंस स्टैटिक जीके, राइट? स्टैटिक जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से करो. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स और वन क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, और पॉलिटी से 1 or 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, but maximum question you can expect from history and geography section. Okay, while guessing. Okay sir, how can we improve, how can we cover the important days of the year? These are the so many days. Okay, see, try to cover at least last 6 months, previous 6 month important days. Okay, right now we have August. August से ले लो. Okay, सितंबर चालू हो गया लेकिन अगस्त से ले लो. अगस्त से प्रीवियस 6 मंथ. ट्राई टू कवर एटलीस्ट 6 मंथ, प्रीवियस 6 मंथ तक. प्रवीण गांधी वी कैन एक्सपेक्ट 100. प्रवीण गांधी को 100 पकड़ सकते हैं हम लोग. ओके, सो सेट योर टारगेट, जो भी आपका टारगेट है. ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया टारगेट आपका 120 होना चाहिए. तो कोई भी कॉलेज हम लोग ले सकते हैं. इफ यू वांट प्रवीण गांधी ले लो. देन को लेट्स से इफ यू वांट टू टेक इन जीएलसी ले लो. जो आपको लेना है आप ले सकते हो. ओके, स्कोर मैक्सिमम और टॉप स्कोर करोगे ना तो क्या होता है उसका बेनिफिट, यू कैन गेट एनी कॉलेज. यू कैन गेट एनी कॉलेज. जीएलसी भी ले सकते हो, आईएलएस भी ले सकते हो. प्रवीण गांधी लेना, प्रवीण गांधी ले सकते हो. ओके, ओके, सो स्ट्रैटेजी समझ में आया? प्लानिंग कैसे करना है? स्ट्रैटेजी इज क्लियर. दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रैटेजी. मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड वीक पॉइंट पे काम करना है. ओके, सेम थिंग. प्लानिंग इज नथिंग बट मॉक टेस्ट का प्लानिंग कैसा है? गिव मॉक टेस्ट. ओके, डू दिस वर्क. फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद उसको टॉपिक को अच्छे से कर लो. जो भी आपका प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस टॉपिक में आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो टॉपिक को अच्छे से कर लो. देन गिव सेक्शनल टेस्ट एंड कंप्लीट कर लो उसको 2 दिन में. जो भी आपका वीक पॉइंट है अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दो. ओके, एंड देन गिव सेकंड नंबर मॉक. अगेन वर्क ऑन द सेम पार्ट and give third and up to 10. So con takes a lot of time. What to do when we're running out of time? Okay, see most of the students को ना यही प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करनी है. Okay, see, we have 5 sections. Okay, so see this. So initially you need to start the एग्जाम को कैसे स्टार्ट करना है. ओके, अगर if you are giving full length mock test also, then you need to start from GK.
आप यूजुअली क्या करते हो, अगर मॉक टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग आ गया ना, लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करते हो, इंग्लिश आ गया इंग्लिश से स्टार्ट करते हो, उसमें क्या होता है मैक्सिमम टाइम आप उस सेक्शन में दे देते हो। ओके, ट्राई करते हो एक क्वेश्चन पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है देन उस पर अटे रहते हो। मतलब लेट्स से कि अगर एक लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसको 1 मिनट लगना चाहिए, लेकिन आप एक्चुअली उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड यू आर गिविंग एटलीस्ट 3 मिनट, एंड उसके बाद आप बोल रहे हो अरे यार इसका आंसर नहीं आ रहा है, स्किप कर देता हूं। आफ्टर 3 मिनट इफ यू आर स्कीपिंग, इसका इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट ऑल सेक्शंस पे आ जाता है, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे, चारों सेक्शंस में इसका इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट स्टार्ट विद द लॉजिकल रीजनिंग, you need to start with GK, or we can say general knowledge. So first preference is for GK, because hardly you will see you will see 30 questions and hardly you will require 1 minute to solve. ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो लगने ही वाला नहीं, लेकिन मैक्सिमम इन विद इन 15 मिनट्स में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम 15 मिनट्स में, मैक्स 15 मिनट्स में ये पूरा सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। देन गो फॉर लीगल एप्टीट्यूड। यहां पे आपको एक स्ट्रेटेजी याद रखनी है। ओके, 30 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, और यहां पे मैक्सिमम आप 35 मिनट्स ले सकते हो। 35 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, दैट्स इट। यहां पे अगर 35 लेते हो, 35 प्लस 15 विच इज नथिंग बट टोटल वी हैव 120 मिनट्स। ओके, सो 35 प्लस 15 इज नथिंग बट 50 मिनट्स हो गए, स्टिल वी हैव 70 मिनट्स। इसमें से 20 मिनट्स आपको इसमें देना है, यू हैव टू गिव 20 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स देने हैं। 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस इजीली डुएबल है। ओके, कोई वो बताएगा कि ये नहीं कर सकते 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस, इट इज डुएबल। ओके, सो 20 मिनट्स, सो जीके 15 मिनट्स, then second thing is nothing but logical aptitude, legal aptitude, legal 35 minutes. Third section is nothing but English, you can give 20 minutes. Then mathematics, fourth section. Okay, mathematics fourth section, you need to give 10 minutes, 10 minutes 10 marks, that's it. Okay, and logical reasoning LR 35 minutes. कितने मिनट्स देना है? 35, नॉट 40। दिस इज नथिंग बट योर, और लास्ट 5 मिनट्स बचेंगे, वहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना होता है। सबको पता है क्या करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको ए बी बी सी सी जो भी मार्क करना है आपको वो मार्क कर सकते हो। सो दिस इज आइडियली यू नीड टू गिव, एग्जाम में आपको ये स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन रखना है। आपको जो भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको ये याद रखना है। Initially you will give 15 marks for GK, then 35, so initially you will give 15 minutes for GK, then 35 minutes for legal, and 20 minutes for English, then 10 minutes for mathematics, and 35 minutes for logical reasoning. And one more thing, whenever you attempt logical reasoning, always keep in mind कि कुछ लोग ना पजल लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, वो रॉन्ग है। बिकॉज क्या है, लास्ट मोमेंट पे आप पजल अटेम्प्ट करते हो, इफ यू हैव ओनली 3 मिनट्स, लास्ट 3 मिनट लेफ्ट है और आपका पजल ना ऑलमोस्ट ना सॉल्व होने वाला था, 2 मिनट 45 सेकंड्स में सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट, लेट्स से कि 2 मिनट्स और 45 सेकंड्स में सॉल्व हो गया, लास्ट 15 सेकंड्स बचे। नाउ यू हैव सॉल्व ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का पजल सॉल्व कर लिया, और लास्ट 15 सेकंड्स में आपको 5 के 5 ऑप्शन मार्क करते हैं, और जो पॉसिबल नहीं है। ओके, बिकॉज आपको क्वेश्चन रीड करने होते हैं, देन यू नीड टू गिव आंसर। तो उस मोमेंट पे आपका क्या हो जाता है, आपका आंसर आ गया लेकिन आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है ये? और ये इतना लेवल तक होना ही नहीं चाहिए। लास्ट 5 मिनट्स पेंडिंग होनी चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 3 मिनट्स तो होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू मार्क ऑल ऑप्शंस। 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स आपको 150 क्वेश्चंस आपको मार्क करने ही है। सो यू शुड नॉट बी, आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए शॉर्टेज ऑफ टाइम, ऐसा कुछ आंसर्स नहीं आने चाहिए मुझे। ओके,
सेक्शनल टेस्ट एवरी डे करना है? सेक्शनल टेस्ट एवरी डे नहीं करना है। सी जो आपके वीक पॉइंट्स है उसको इंप्रूव करने के लिए सेक्शनल टेस्ट देना है। कॉन्ट ज्यादा टाइम लेता है तो उसमें क्या करो, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जितने इजी इजी क्वेश्चंस दिखते हैं वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, और जो क्वेश्चंस आपको लगता है ये क्वेश्चन मेरा टाइम ले लेगा, स्किप, बाद में आएंगे उस पर टाइम का, बाद में उसको टाइम देंगे। ओके, समटाइम्स यू विल सी कुछ क्वेश्चन ऐसे ना कि 3-3 मिनट्स ले लेंगे, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है उस टाइम पे। स्कीपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्कीप करेगा क्वेश्चन उसका ही पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, जो स्कीप नहीं करेगा उसका पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, बिकॉज वो एक ही क्वेश्चन पे बैठा रहता है और 3 से 4 मिनट लेता है और आंसर नहीं मिलता है। ओके, स्कीपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। So like on 1st July we have GST day. So likewise there are so many days. So how can we cover these days? See, Vaibhavi, what exactly you can do is nothing but for days. Days के लिए क्या करो मालूम है? You can write down the all dates. Okay, month wise जो भी dates है आपको याद मतलब लिख के रखो, and try to remember likewise कुछ तो GST के लिए 1 जुलाई है ना, सो जुलाई मंथ्स के पूरे लिखो कि यहाँ पे लेट से 1 to 31 तक जो भी है एक पेज पे लिखो और वॉल पे चिपका दो। जो लास्ट 6 मंथ है वो एटलीस्ट चिपका दो, और डेली एक बार देख लो। लास्ट 20 डेज 30 डेज में वो बाय हार्ट हो जाएंगे। ओके, ऐसे एक ही दिन में करने जाओगे तो याद नहीं रहेंगे, 20-30 डेज में हो जाएगा। सी you can expect मैथ्स में ना you can expect maximum questions from yes, this year, right? This year Vaibhavi. So for mathematics you can expect 10, you can expect 10 question में से ना 2 or 3 questions you can expect from word problem which means time, speed and distance like this. Okay, so वो questions easily आपके solve हो जाएंगे, doable है। एक क्वेश्चन अगर आपका DI का आ जाता है, इफ आ जाता है, देन ये भी सॉल्वेबल होगा। उस मोमेंट पे आपको देखना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। बट यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक से दो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे आपको। देन यू कैन मे बी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो 2 to 3 से 4 to 5 हो सकता है। ओके, लास्ट ईयर 4 to 5 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फॉर वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से करके रखो। ओके, एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस अच्छे से करो। एंड वन मोर थिंग इज नथिंग बट नंबर सीरीज। ओके, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। समटाइम्स दे विल आस्क यू फॉर मैथमेटिक्स आल्सो, वो उसमें भी पूछ लेते हैं। तो वो नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपका स्पीड मैथ यूज हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से करके रखो। So 3 years LLB doesn't have maths, right? Yes, 3 years के लिए नहीं, ये सेशन सिर्फ 5 years के लिए। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? So first step you need to give full length mock test. Okay, update okay, once you have given the mock test, update me the score. Okay, update me the score, जो भी आपका स्कोर आएगा। let's say if you got 80, then just update me with one format क्या होना चाहिए, वीक सेक्शन जो है वो आपको उसी हिसाब से भेजना है। लेट्स से दिस इज नथिंग बट योर रीजनिंग पार्ट। सो रीजनिंग में वीक सेक्शन कौन सा है? लेट्स से वीक सेक्शन इज नथिंग बट पजल। सो
पजल वीक सेक्शन है, सो आई विल टेल यू क्या करना है एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है वो भी लिखो यहाँ पे। you're good in syllabus, so write down all strong points. okay, जो भी आपके एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोडिंग डिकोडिंग है, कोड इक्वल, जो भी आपके पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। सिमिलर यू नीड टू डू फॉर ऑल सेक्शंस लाइक लीगल। टॉर्ट्स में आपका बहुत वीक सेक्शन आपका टॉर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, लाइक ओके। जो भी आपके वीक पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे फॉर्मेट मुझे भेजो। ओके, आंसर जो भी आपका जो भी स्कोर आ रहा है आपको इस फॉर्मेट में भेजो। देन आई विल टेल यू द एग्जैक्ट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए आपको क्या करना है, एंड देन गिव अगेन वन मोर मॉक। एग्जाम जब तक आएगी नहीं तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। दैट्स इट। सर हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश सेक्शन? यस, इंग्लिश सेक्शन के लिए सी एग्जैक्टली कितना स्कोर आ रहा है वो मुझे बताओ। ओके, इंडिविजुअली यू नीड टू सेंड टू मी लाइक जो भी आपकी क्वेरीज है, लाइक if you got 26 marks, let's say if you got 15 marks or 10 marks or 12 marks, so exactly in which section you are not getting good marks, like let's say if you are getting 10 to 12 marks and your weak section is error diction, so पूरा error diction की वजह से सिर्फ 10 मार्क्स आएंगे क्या? नो। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स, उसके पीछे बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। लेट्स से कि एरर डिक्शन है, पैरा जंबल है आपका वीक सेक्शन, देन आरसी वीक सेक्शन है। सो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इस पे वर्क करना है। सो व्हाट एग्जैक्टली नीड टू डू, डेली बेसिस पे जो वीक पॉइंट्स है उसका एक सेट, एटलीस्ट वन सेट आपको सॉल्व करना है। एटलीस्ट वन सेट, आई एम नॉट सेइंग कि 2 से 3 सेट सॉल्व करो, एटलीस्ट वन सेट सॉल्व करो। ओके और ये लास्ट मोमेंट पे जो काम करेगा ना, और लास्ट मोमेंट में जो वर्क करेगा इस पे, उसको ही उसका मतलब उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा। जो सोचते बैठेगा एग्जाम कब है, पूछेगा सिर्फ एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, तो फिर आप रह जाओ पीछे। ब्लड रिलेशन एंड पजल में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेली बेसिस पे उसको ले लो, एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करना चालू कर दो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, गो वॉच वीडियो वन मोर टाइम, देख लो अच्छे से, वापस सॉल्व करो। ओके, ये मोमेंट पे यही कर सकते हैं हम लोग। दीक्षा, उसके लिए मैंने आपको बताया, मैंने एक बताया था, देखो Diksha's doubt was like when we get lengthy questions we take a lot of time and we tend to read it, so should we skip lengthy para? ओके मतलब शी इज ट्राइंग टू से कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं आरसी में, बहुत ज्यादा ज्यादा पैराग्राफ आते हैं, सो बहुत टाइम लग जाता है उसको रीड करने के लिए। सो मैम ने उसको स्ट्रैटेजी बताया रहेगा आपको आरसी कैसे सॉल्व करना है। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो फॉर जो भी आपके क्वेश्चन है पहले उसको देख लो एंड देन आरसी सॉल्व करो और आरसी पढ़ो। ओके, सो उससे क्या होता है आपको इजीली आंसर्स मिल जाते हैं। उसके लिए मैंने 2 स्ट्रेटेजी बताया, एक मत बताया था आपको, एक सबसे पहले बताया था आपको, एक मॉर्निंग में आरसी लिखो और मॉर्निंग में आरसी सॉल्व करो एंड देन इवनिंग में एटलीस्ट वन एडिटोरियल पढ़ो, एटलीस्ट वन, कोई तो एक एडिटोरियल पढ़ो, कोई भी सेक्शन से पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस इज गुड, द हिंदू इज वेरी गुड, बट ये मोमेंट पे उसका रिस्क नहीं ले सकते। सो द इंडियन एक्सप्रेस इज गुड, यू कैन रीड एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, so we have to discuss and send our week topics on your WhatsApp. Yes, जो भी आपके डाउट्स आएंगे यू नीड टू सेंड ऑल डाउट्स टू मी पर्सनली, आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो एनी डाउट apart from this, any questions from your end? No, so we'll stop here.